IBG News Market Dost series with analyst Vishal Sharma. Know your stock market and take informed decisions. No risk, no gain. Without knowledge, everything is pain. Trade responsibly. Make your safest bet to reduce loss. নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমরা বিশাল শর্মা মার্কেট অ্যানালিস্টের সাথে বিশেষ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। তো এই আলোচনাটা করার আগে আমরা দুটো জিনিসের বিষয়ে একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনাদের। প্রথম হচ্ছে, আমাদের সর্বভারতীয় বন্ধুরা অনুরোধ করেছেন যে যদি অনুষ্ঠানটার কিছু অংশ তো অন্তত আমরা হিন্দিতে বা ইংলিশে করি। তো হিন্দি বা ইংলিশে করলে কি হবে, সেক্ষেত্রে বিশালজি আর আমি যে কথাগুলো বলবো সেটা সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে সবাই বুঝতে। আমাদের বিশালজি এসে পড়েছেন, আমরা বিশালজিকেও অনুরোধ করব যে বিষয়টার মাথায় রাখতে। আমাদের এইখানে যারা বন্ধুরা রয়েছেন তাদের সবার কাছে বিনীত অনুরোধ, আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা আপনাদের প্রশ্ন আমাদের লাইভের চ্যাটের মাধ্যমে পাঠাতে পারেন। অনুমোদিত আমরা স্ক্রিনে দেখাবো, সবাই অন্যরাও দেখতে পাবেন। तो दोस्तों, जो रिक्वेस्ट आया है अपने सारे व्यूअर्स के तरफ से वो ये है कि सुमन जी, ये जो गुफ्तगू है ये थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में भी करना बीच बीच में। तो हम लोग जो ऑल इंडिया लेवल से या इंटरनेशनल लेवल से देख रहे हैं या दूसरे राज्य के निवासी हैं, हम लोगों के लिए भी आसानी होगा समझने में। तो विशाल जी, आप जुड़ने से पहले हम दर्शकों से यही बात कर रहे थे कि आज के बाद से अपना जो गुफ्तगू रहेगा वो बांग्ला, हिंदी और इंग्लिश तीनों में हम लोग बारी बारी में थोड़ा थोड़ा करके बात करेंगे। जी बिल्कुल। ऑलरेडी एक क्वेश्चन हम लोगों के पास आया है, जो क्वेश्चन हम आपके सामने बोलना चाहते हैं वो क्वेश्चन ये है कि विशाल जी, आप जो बता रहे हैं, जो बता चुके हैं पिछले 3-4 एपिसोडों में, मार्केट ठीक उसी तरह बिहेव किया है, मार्केट उसी तरह रिएक्ट किया है। एक बार 2 बार हो सकता है, लेकिन बार बार 4-5 10 बार ये नहीं हो सकता है। तो इसके पीछे मैथमेटिक्स, इसके पीछे स्टैटिस्टिक्स, इसके पीछे 14, 15, 20 साल का निचोड़ और पुरखों का अनुभव का साथ रहता है। इसके बाद भी एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा लेकिन बहुत ही चुभने वाला प्रश्न आया है कि सर, हम लोगों के पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। हम किसी भी सॉफ्टवेयर का नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो अपने एक प्रतिष्ठान की तरफ से सही नहीं होता है। बिल्कुल। लीडिंग सॉफ्टवेयर रहता है, उस सारे सॉफ्टवेयर में इतने सारे ऑप्शन रहता है कि हम एक नौसिखिया मार्केट का, ट्रेडिंग का अभी खेलने वाला आदमी हम पूरा घूम जाते हैं। ये मेरे लिए लखनऊ का भूल भुलैया बन जाता है और इसके गलियों से हम निकल नहीं पाते। इसको पकड़ूं तो दाहिने जाने को बोलता है, उसको पकड़ूं तो बाएं जाने को बोलता है, किसी तीसरे को पकड़ूं तो सीधे जाने को बोलता है, जाऊं तो किस तरफ जाऊं सर। तो ऐसा कुछ आप लोग हम लोगों के लिए कर सकते हैं क्या, जो हम लोगों को सीधी तौर पे बता दे भैया ये और ये होने जा रहा है। आप आपके हिसाब से, आपके हुनर से, आपके प्रैक्टिस से, लगन से, ध्यान से, आपके पढ़ाई से उसी तरफ चलिए। तो ऐसा कोई मार्गदर्शन करी चीज आपके ध्यान में ऐसा कुछ है तो थोड़ा उस बारे में अगर आप आज बताते। ये एक क्वेश्चन है। वो बेसिकली व्हाट ही वांट्स टू नो, देयर आर सो मेनी मार्केट सॉफ्टवेयर अवेलेबल, those who are telling that based on the different kind of paradigm protocols that either you go for buying
or you go for selling, or you don't go for anything, you stay, just hold it. We are the new traders and we are getting confused, sir, with so many parameters in the softwares, what to follow and what not to do. So is there any option or any chances that the way simplistic guideline you are giving over this discussion for last 1 month, similar kind of any tool or any software, is it available, or will it be available, or anything in your plan that where you can guide it? তো যেটা নিয়ে বলছিলাম, আমি তিনটে ভাষাতেই কোশ্চেনটা রাখছি, বিশালজি অলরেডি বুঝে গেছেন, তবু আমাদের দর্শক বন্ধুদের জন্য রাখছি, যে আমরা সফটওয়্যার গুলো মার্কেটে প্রচুর পাই, অনেকগুলো অ্যাভেলেবল আছে, 500, 1000, 2000, 50,000, 1 লাখ, নানা দামে নানা মতের সফটওয়্যার আছে। সেই সফটওয়্যারগুলোকে নিয়ে যখন কাজ করতে বসি, কোনো একটা অপশন, অনেকগুলো অপশন আছে, 5-7টা অপশন, তার মধ্যে কি করতে হবে, একটা অপশন বলছে কেন, একটা বলছে বেচে দাও, আর একটা বলছে কিচ্ছু করো না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো। এখন এবার আমরা হয়ে যাচ্ছি কনফিউজ, আমরা ছোট ট্রেডার, সবে মার্কেটে এসেছি, কিছু অত বুঝি না স্যার। তো এরকম কোনো ব্যবস্থা, টুলস বা কিছু অ্যাভেলেবল আছে, অ্যাপ ট্যাপ কিছু আছে যেটা আমাদের গাইড করতে পারে? এইটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এসছে। আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এসছে যে विशाल जी, अगर इतना ही सब कुछ पता है तो सारे मर्सिडीज लेके, BMW लेके, जगुआर लेके, हेलीकॉप्टर लेके आपके पास क्यों नहीं पहुंच रहा है? ये तो तुरंत चुटकियों में हर कोई करोड़पति बन जाएगा, अरबपति बन जाएगा। तो इसके पीछे आप क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं सबको? इतना कॉल्स आ रहा है, इतना ईमेल आ रहा है, आप सिर्फ आके बीच बीच में ये चैनल पे बोल के जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को एंट्री क्यों नहीं दे रहा है सर? तो ये जो तीनों क्वेश्चन है, इसके आगे मेरा तो कुछ बोलना नहीं है, जो कुछ भी बोलना है आज आप ही को बोलना है साहब। मार्गदर्शन कीजिए अपने दर्शकों का। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। वो इसलिए कि आप लोगों ने मुझे इस चैनल के साथ जुड़ने का मौका दिया। दूसरी बात यह है कि आज लास्ट 1 महीने से मैं बोलते आ रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग जितना हो सके, अगर आपके पास में कोई शेयर है उसमें प्रॉफिट बुक कीजिए। पहली बात, 70% कैश अपने हाथ में रखिए। दूसरी चीज, और तीसरी चीज, मैंने डेट प्रेडिक्ट की थी, याद होगा शायद आप लोगों को, और लेवल भी प्रोवाइड किए थे कि कहां तक मार्केट ऊपर जाएगा और कहां तक मार्केट नीचे जाएगा। चाहे तो मेरा पुराना वीडियो जितना भी है, लास्ट 4 वीडियोस आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें मैंने एकदम साफ तौर पे कह दिया था कि 4 तारीख को, 4 अप्रैल को एक टॉप आउट होगा 4 से 6 के बीच में, वो होगा 18,114, और वो मैंने कहा था 3 तारीख की रात को। 4 तारीख को क्या होने वाला मुझे भी पता नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ वही जो मैंने 3 तारीख की रात को कहा। उसके बाद से देख लीजिए आप, मार्केट वर्टिकली फॉल किया है। Exactly so. We remember that. What you said, that has exactly gone into the market index. और उसी 3 तारीख की रात को, शाम को, मैंने एक और डेट कही थी, 18 से 19 तारीख को एक और प्रेशर डेट है, जो कि मार्केट को एक बार बाउंस खिला करके ऊपर में लेके जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट को वो नीचे ही लेके जाएगा। और देखिए, एक अजीब सी घटना घटती है, और इसके पीछे में रीजन क्या है आज तक कोई बता नहीं पाया था। कोई कुछ तो कोई कुछ कह रहा है, और वो दिन था 19 अप्रैल का। मार्केट सुबह से ही एक बुल रन में चल रहा है, धीरे धीरे मार्केट ग्रेजुअली ऊपर की तरफ में ही दौड़ रहा है, और उस दिन जाके मार्केट ने एक टॉप बनाया। वो टॉप था 17,275। अच्छी बात है, मार्केट बुल के ग्रिप में है। अचानक 2:45 बजते हैं, 2:45 और 45 मिनट का वक्त बाकी है। सबने सोचा कि मार्केट तो टॉप पे जाके ही बंद करेगा, मार्केट नीचे नहीं आएगा।
लेकिन मैंने कह दिया था पहले से ही कि जो भी पुल बैक आना है वो उसी दिन तक के लिए वैलिड है, उसके बाद में मुझे मंदी ही दिख रही है, मेरे हिसाब से मंदी ही रहेगी। सडनली मार्केट में ऐसा हुआ कि मार्केट का मूड चेंज हुआ और विशाल जी, मार्केट, मैं यहाँ पे हाँ, आपको एक सेकंड रोकूंगा सर। मैं आपका ही बताया हुआ एक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। हम लोगों का कुछ सॉफ्टवेयर नहीं है, ये फ्रीली अवेलेबल चार्टिंग बोल के एक सॉफ्टवेयर है, चार्टिंग है, फ्री एकदम। उसका स्क्रीन हम ओपन कीजिए कर रहे हैं सो दैट कि दर्शकों को भी पता चले आप क्या बोले थे हाँ, और क्या होने जा रहा है और क्या हुआ। तो मैं इसको ओपन करूंगा और आप इसमें हमको क्लियरली जो दिखाएंगे, जो बताएंगे, उसी के ऊपर ये होगा। ठीक है सर? जी बिल्कुल। देखिए, ये हम खोल के रखे हैं, चार्टिंग फॉर मंथली डेटा रेंज। थोड़ा ऊपर कीजिए। देखिए ये क्या लेना है अभी, दिख रहा है आपको? नहीं नहीं नहीं, ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, मतलब कि पिक्चर दिखाई दे रही है लेकिन वो प्रॉपर जो चार्ट होना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा। ये किसका चार्ट है? निफ्टी का क्या? नहीं, ये एमआरपीएल का चार्ट है। हाँ, ये जो शेयर है ये इसका नाम है एमआरपीएल, जो कि मेरा जो लेवल था दिया हुआ, जो कि हालांकि मैंने इसको प्रेडिक्ट नहीं किया था आपके टीवी चैनल पे, उस दिन मैंने निफ्टी को ही प्रेडिक्ट किया था। मैं निफ्टी का बता के दे रहा हूँ। हाँ, निफ्टी का आप जो चार्ट दे रहे हैं उसको एक काम कीजिए, आप इसको कन्वर्ट कीजिए 6 मंथ और डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम 6 मंथ, ये लाइफ टाइम चार्ट है, ये ऑल टाइम चार्ट है। देखिए आप, मंथली चार्ट है ये, और ये मंथली चार्ट है और ऑल डाटा चार्ट है ये। इसमें आज तक 20-22 साल तक का सारा डाटा दिया हुआ इसी चार्ट पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चार्ट है। तो हम लोग इसका ले रहे हैं 1 मंथ का? नहीं, आप 6 मंथ का लीजिए, 6 मंथ और डेली टाइम फ्रेम पे, मंथली पे नहीं। 6 मंथ्स मंथली? हाँ जी, अपडेट। हाँ जी। डेली, ये देखिए। एंड नाउ मैंने 4 तारीख कहा था आपको, देखिए 4 तारीख, 4th अप्रैल, मार्च में भी मैंने कहा था 21 मार्च को मार्केट एक रिवर्सल लेगा। ये रिवर्सल लिया। हाँ, वो था आपका 8 मार्च, वो वहां से रिवर्सल लिया। ये देखिए, रिवर्सल रैली जो जाकर के रुकी है 4th अप्रैल को। करेक्ट। वहां से मैंने कह दिया था कि 4 तारीख को मार्केट टॉप आउट होकर के नीचे जाएगा, और आया नीचे, देख लीजिए आप। और मैंने लेवल बताया था 18,114 का, वहां पे देखिए टॉप भी वही एग्जैक्टली वही बना है, 18,114। यहाँ पे देखिए एकदम टॉप पे, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे देखिए दर्शकों, ये जगह पे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं मार्स उसका पॉइंटर ले रहा हूं और कैसे ये चेंज हो रहा है। देखिए जहां पे डेट पे, ये हम लोगों का डाटा नहीं है, ये मार्केट इंडेक्स से आ रहा है और निफ्टी का वैल्यूएशन, अर्थात जो हम लोग बोले थे, जो अपना जो रिसर्च है, वो रिसर्च बिल्कुल सही जा रहा है। क्यों विशाल जी? बिल्कुल, मेरे बताने के बाद से ऑलरेडी 1300 पॉइंट बाजार ऊपर से नीचे गिर चुका है निफ्टी। 1300। ये हम लोग लास्ट 2 मंथ का डेटा को अपडेट करते हैं और इसमें देखिए, यही है आपका वो पॉइंट जो विशाल जी बता रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं जाकर के टॉप आउट हुआ है। देखिए ये 5 तारीख है, ये लाइन जो अभी इसमें है ये 5 तारीख का है। उसके पहले देखिए 4 तारीख का टॉप किया, उतरना शुरू हो गया। उसके बाद में देखिए नीचे 4 को टॉप किया, फिर उसके बाद से नीचे उतरना शुरू करे। तो यही विशाल जी बोल रहे हैं कि जो आपको करना है, जो आप कर रहे हैं, वो सारे चीज अवेलेबल है। विशाल जी, हम लोग फिर से अपना स्क्रीन पे वापस आ रहे हैं
थोड़ी देर के लिए चार्ट को बंद कर रहे हैं। हाँ जी। और तो हमने जो दिखाया, जो वट एवर विशाल हैज प्रेडिक्टेड, नाउ देयर इज ए क्विक क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ आवर फ्रेंड. He is an expert of share trading. What he said last week, one or two times, even a newcomer can predict very well. Just listen, sir. This is very important. But if it is happening third, fourth, fifth time, then the man needs to be cultivated. Quote unquote. Then the man needs to be cultivated. So he is a very seasoned campaigner, and officially, ये तो हालांकि बोलना नहीं चाहिए, पहले दिन का एपिसोड से वो आपका सबसे बड़ा क्रिटिक था कि ये कैसे हो सकता है, कैसे बोल सकता है. लेकिन आज शाम को वो हमको बोले हैं कि सर, I will see the thing. Now I have become the one of the staunch fan of Vishal ji. So please tell him that how to get benefit out of his hard work, research and all these things. देखिए, तो विशाल जी क्वेश्चन वहीं पे घूम के आता है. इतना क्वेश्चन आ रहा है, फोन आ रहा है, मेल आ रहा है, फिर आप सबको क्यों आपके पास आने नहीं दे रहे? देखिए, मेरे पास आने के लिए मैंने किसी को मना नहीं किया है, लेकिन बात ऐसी है कि अगर आपको क्वालिटी चीज चाहिए तो आप में भी क्वालिटी का होना जरूरी है. अगर आप पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं कि आपको ये करना है और इसी फील्ड में, इसी शेयर मार्केट में औरों से हट करके सोचना है, तभी आप मेरे पास में आ सकते हैं. अदरवाइज मैं हर किसी को एंटरटेन नहीं करता. दूसरी चीज, आप किसी भी टीवी चैनल पे देख लीजिए, किसी भी एनालिस्ट से बात कर लीजिए, आपको सारे एनालिस्ट यही कहते हुए सुनाई दिए थे कि 19,000 का इंडेक्स जाएगा. दूसरी चीज, सारे के सारे, मैं किसी एनालिस्ट को छोटा नहीं कर रहा हूँ, सब अच्छे हैं, सब बहुत उम्दा क्वालिटी रखते हैं, लेकिन दूसरों में और मेरी एनालिसिस में फर्क 19-20 का नहीं, हेल और हेवन का है. क्यों? क्योंकि मैं जिस चीज को यूज करता हूं, जिस पैरामीटर को फॉलो करता हूं, वो प्राइस और टाइम दोनों को बेस करके वर्क करता है. अगर अपने थोड़ा 2 मिनट के लिए अगर अपने सब्जेक्ट से थोड़ा हटें तो देखेंगे, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, अपने पूरे फेस पर देखिए, इस फेस में देखिए, हर चीज 2 है अपने पास. आंखें, हालांकि मेरे को और आपको 4 हैं ऊपर वाले की दया से. वेरी गुड. आंखें 2 दी गई. नाक 1 है, लेकिन सांस लेने के लिए छेद देखिए 2 हैं. मुंह 1 है, लेकिन होंठ यहाँ पे कितने 2 हैं. कान सुनने के लिए दिए गए हैं, वो भी 2 हैं. तो हर चीज के 2 पहलू होते हैं, 2 नजरिए होते हैं. वैसे ही शेयर मार्केट को समझने के लिए सिर्फ एक प्राइस बिहेवियर, प्राइस एक्शन पर आप ज्यादा दिन इस मार्केट में नहीं टिक पाएंगे. आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म, I want to say to our viewers what he has said to understand. हम लोग एक बार फिर से वो चार्ट में आते हैं. वो चार्ट में आने से आप सबको पता चल जाएगा वो क्या बोलना चाह रहा है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए विशाल जी जो बोल रहे हैं, ये जो दे रहे हैं प्राइस का दे रहे हैं, साथ में नीचे देखिए इसका एक स्केल चल रहा है डेट का. तो जो लोग पुराने खिलाड़ी है उस सबको ये बहुत ही बेसिक चीज लगता है, लेकिन जो नया ज्वाइन किया है उन लोगों को ये जानना जरूरी है कि इस डेट पे कितना था हाई, कितना था लो, इस डेट पे आके कितना है. लेकिन यहाँ से यहाँ तक, फ्रॉम हियर टू हियर, এখান থেকে এখানে এটা কেন পড়ে যাবে, কেন উঠে যাবে, সেইটার ক্রেডিটটাই হচ্ছে
Vishal Sharma analysis. Vishal X Factor is nothing but that only. तो हम लोग विशाल जी से सुनना चाहते हैं। विशाल जी, आप बताइए कि दर्शकों को आप जो बोल रहे थे, हम आपको 1 मिनट रोक लिया, वो चार्ट इसलिए दिखाए कि सबको पता चले कि हम लोग किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। हाँ जी, हम लोग जिस मामले में बात कर रहे हैं वो है दोनों पैरामीटर को पंच करके एक रिजल्ट तक पहुंचना। वो दोनों पैरामीटर क्या है? प्राइस और टाइम। और मैं दोनों को एनालाइज करता हूं। आप लोग देखिए कि आज लास्ट 1 महीने से मैंने जो दिन आप लोगों को इन एडवांस प्रेडिक्ट किया है, जैसे मैंने एक प्रेडिक्शन करके रखा ऑलरेडी जून महीने के लिए, 7 जून 2022 को आपको निफ्टी कुछ और ही दिखेगा। अच्छा, अब हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे थे वो था सॉफ्टवेयर। ओके, दूसरे सॉफ्टवेयर से हमारे सॉफ्टवेयर में फर्क कहाँ रहेगा? फर्क सिर्फ एक चीज का रहेगा, वो ये है कि उसमें आपको किसी भी तरह के डायलेमा में रहना नहीं पड़ेगा। किसी भी तरह के डायलेमा में आपको रहना नहीं पड़ेगा। मार्केट आपके हिसाब से वही काम करेगा जो आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे। आपको 4 महीना पहले, 6 महीने पहले, यहाँ तक कि साल भर, 2 साल पहले आपको पता चल जाएगा उस दिन ये वाली घटना घटने वाली है। टाइम कैलकुलेशन उसमें दिया रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए आपको रिलायंस का या टाटा स्टील का डाटा चाहिए, हम लोग जिस हिसाब से उसको इस हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे, इस हिसाब से उसका फॉर्मेशन होगा कि उसमें प्राइस, टाइम, ये दोनों के दोनों को पंच किया जाए। और ये दोनों आज जैसे मैं बोल रहा हूं, आप लोगों को किसी को सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग खुद उस सॉफ्टवेयर में डाटा फीड करेंगे। डाटा फीड करने के संग संग आपको कल सुबह में आज रात में पता चल जाएगा कि कल के लिए कौन सा लेवल बहुत ज़्यादा वाइटल होने वाला है, कौन सी डेट आने वाले दिनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेशर डेट है, जिस डेट के माध्यम से आप बाई या सेल कर सकते हैं। विशाल जी, आपको यहाँ पे एक बार हम रोकना चाहते हैं। हम लोग पत्रकार हैं, बोलते हैं कि उड़ते चिड़िया का भी पर गिन लेते हैं। हम लोग जो सही पत्रकारिता करते हैं तो वो लोग कहीं ना कहीं सच के पीछे पहुंच ही जाता है, और सच को अपने दर्शक तक पहुंचाना आप लोगों का काम होता है। तो हमारे मार्केट इंटेलिजेंस, आपका इंटेलिजेंस मार्केट का, शेयर मार्केट का होता है, हमारे इंटेलिजेंस होता है जो शेयर का जानकार रहा होता है उसके बारे में इंटेलिजेंस रखने का। तो हमने सुना है कि आपके साथ ऐसे कुछ आदमी जुड़े हुए हैं जो बड़े बड़े दिग्गज, जो यूएस और वर्ल्ड का सॉफ्टवेयर कंपनीज में हेड पोजीशन में बैठे हैं। उस सबका टीचर जैसा, प्रोफेसर जैसा आदमी आपके साथ जुड़ा हुआ है, और आप लोग एक मार्केट इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का डिजाइन ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। ये बात कहाँ तक सच है? ये अभी अभी हमको पता चला है, जस्ट बिफोर द कॉल। हालांकि आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, ना बोलना चाहे तो भी आपका हक है। लेकिन हमारा दर्शक लोगों के लिए उत्सुक ये है कि not only you have done your research, you have chosen a very strong, stringent partner, a big analyst from the software domain for you. Is it true, sir? जी, आप जब अच्छे एक पत्रकार हैं तो आपने तो चिड़िया के पर गुन ही चुके हैं। आप देख भी चुके हैं, गिन भी चुके हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है। आप एकदम सही प्रोजेक्ट किए हैं। आपका जो मानना है वो बिल्कुल सही है। ऐसा कुछ प्रोग्राम प्लानिंग मार्केट का यहाँ तक कहना है मार्केट का। मैं थोड़ा इस बारे में आपको बता दूं, जिस जानकार से मेरे बात हो रहे थे वो खुद 20-30 साल से ओवरसीज एंड इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत ही सीनियर पोजीशन होल्ड कर चुके हैं। उसी का किसी बहुत ही करीबी दोस्त से उसको इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिला है कि इफ दिस सॉफ्टवेयर इज इन द मार्केट, दैट इज गोइंग टू क्रिएट ripple after the way DOS and Windows created in the 80s for Microsoft.
it will create same kind of ripple in the market, in the stock market. Or he also even said that this is going to be the Android like feature for the share market. जी बिल्कुल, इतना आपने चीज हम सही लोग आगे जा चुके हैं और हम किसी को इस बारे में कानों कान भनक तक नहीं लगा। देखिए, आप लोगों को भनक ही नहीं, आप लोगों को पूरा मामला ही आप लोगों के सामने में रखा जाएगा। अभी ये अंडर प्रोसेस है, पूरी तरह से जिस दिन हम लोग डिज़ाइन कर लेंगे, प्रोसेसिंग में आ जाएगा, तो सबसे पहले आप ही के चैनल पे इसको लॉन्च किया जाएगा। आपको ही दिखा करके आप ही करवाएंगे ये चीज़, और कोई नहीं करेगा। थैंक यू विशाल जी, ठीक है? आपका ये दरिया दिली का तहे दिल से शुक्रगुजार होते हैं। आप डिजर्व दर्शकों करते की तरफ हैं, से आपके चैनल को, आपका चैनल डिजर्व करता है, इसलिए सबसे पहले लॉन्चिंग भी आप ही के माध्यम से ही की जाए। तो दूसरा, अभी हम दूसरा पहलू पे आते हैं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे दिक्कत वाला चीज जो रहता है सॉफ्टवेयर में, ये हम लोगों का सजेशन है एज ए रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर, हम लोगों का बहुत हार्ड अर्न मनी होता है साहब। बिल्कुल, उस पैसे को सिक्योरिटी, हैकिंग प्रूफ और मार्केट का जो क्रेजीनेस होता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कुछ मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल रहेगा, वो ज्यादा बिल्कुल मैकेनिज्म रहेगा। ज्यादा क्या होता है, बड़े इन्वेस्टर तो उतना डूबते नहीं है साहब, डूबते नहीं है, डूब जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर, छोटे डूब जाते हैं। इन्वेस्टर। बिल्कुल, मैं आप एक चीज हमको पूछे थे ऑफ द रिकॉर्ड पिछले एपिसोड से बाद कि सुमन जी, आपने ये शेयर मार्केट को लेके क्यों आपने स्टार्ट किया? इट कुड हैव बीन एनीथिंग, मेडिकल और एनी अदर थिंग। तो मैंने आपको उस टाइम बोला था कि साहब, विद इन 10-15 days you will know that a big cheat fund scam again will merge in the market in Kolkata, in Bengal. 2,000 crores of cheat fund activity has been unearthed, and this time big players, big shots who has invested crores of money, they have lost in the Ponzi scheme. So Ponzi scheme factors are very much attractive. 1 रुपया लगाओ 10 रुपया ले लो, ऐसा होता है। But ultimately nobody wins, everybody loses. Only the promoters and those mischievous persons, they wins. हम लोग देखे हैं शारदा में, रोज वैली में, और सारे कंपनीज में, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स बिकॉज दे आर सब जुडिस केसेस, बट द टीयर्स ऑफ द एंड इन्वेस्टर्स आर स्टिल फ्लोइंग। हर एक आदमी का आंख से आंसू निकल रहे हैं, माँ बहन का आंख से आंसू निकल रहे हैं, প্রত্যেকে কাঁদছে দাদা। আপনি যদি গ্রাম অঞ্চলে ঘুরে দেখেন, তারা সর্বস্ব হারিয়েছে। কেউ ভেবেছিল মেয়ের বিয়ে হবে, কেউ ভেবেছিল ছেলে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে, আমি এখান থেকে করব, তারা সব হারিয়ে ফেলেছেন। কি কেন কার জন্য সেটা আমাদের বিষয়, সেটা আদালতের বিচার্য, আমরা সেই বিষয়ে কোনো কথাও বলবো না। সেইখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর রাস্তা একমাত্র যেটা লিগালি হতে পারে, যেটা ভারত সরকার অনুমোদিত, যেটা আমাদের কোনো রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রে বেআইনি নয়, সেটা হচ্ছে স্টক মার্কেট, ট্রেডিং, অ্যানালিসিস অ্যান্ড শেয়ার মার্কেটে ইনভেস্ট করে বেনিফিট অর্জন করা। কিন্তু রিস্ক যেটা হয়, না বুঝে শেয়ার মার্কেটে যদি কেউ নামে, তখন সে কিন্তু জেতার থেকে হারাটাতেই বেশি চলে যায়। এই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যে একটা বেসিক ইনভেস্টার গাইডলাইনের মতন দেয়া। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আপনাকে কেন চুজ করলাম, তার কারণটা আপনাকে খুব ক্লিয়ারলি বলি। ইউ হ্যাভ আস্কড দিস কোয়েশ্চেন and this is the right time to answer, because 1 month 4 weeks 30 days is a good enough time to prove that the other person what he is telling and market is happening exactly like that. তো সেইখানে দাঁড়িয়ে আমরা আজকে সেই কথাটা বলছি যে আপনি গত 4 থেকে 5টা এপিসোড ধরে আমাদের সাথে যে যে কথাগুলো বলেছিলেন, মার্কেটে ঠিক সেইভাবে ঘটেছে। neither you are the manipulator of the market nor I am the manipulator of market. Even I don't have any trading account. Till date, I don't have any trading account. So I don't trade. Now the question is, why is so? আমি যদি ভবিষ্যতে ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট খুলি এবং তাতে যাতে কোনোভাবে লোকে এটা বলতে না পারে
যে আমি আপনার সাথে মিলে বায়াসড হয়ে নিজের প্রফিট করেছি, আমি সেই জন্য এখনো পর্যন্ত কোনো ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট আমার নিজের খুলিনি। আমি এই অনেস্টিটা মেনটেন করি, নাহলে আমিও কিন্তু এই 1 মাসে বেশ কিছু টাকা কামিয়ে নিতে পারতাম। হয়তো ভবিষ্যতে দেখা যাবে যে আপনার থেকে শিখে হয়তো আমিও একজন রিটেল ইনভেস্টর হচ্ছি, বাট দ্যাট ইজ আফটার দিস মার্কেট দো সিরিজ ইজ ওভার। Next thing, important one, the way you taught me the very first day that how the share market person should understand, kibabe tara bujhbe, kaise samjhenge, that gave an insight of a teacher. That is very much important. Expert बहुत सारे होते हैं साहब, लेकिन मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे तरीके से समझाने वाला बहुत कम होता है, और आप वही काम करते हैं हम लोगों के लिए। This is the feedback from one of my colleagues driver. Do you understand विशाल जी what I am saying? आपको तो बहुत सारे फीडबैक मिलता है बड़े आदमी से, ग्रेजुएट से, वो क्लास 8 पास वाला शेयर मार्केट से पिछले 10 दिनों में 15,000 रुपया बनाया साहब आपके चलते। मेरे चलते नहीं, मेरी टेक्निक के चलते। और वो पहली बार साहब, पहला बैसाख में हम अपने बच्चों के लिए कपड़ा खरीदा, नहीं तो दुर्गा पूजा में बोनस मिलता था, उसी में मिलता था। So that's how the market dose is touching the life. That's how you are touching the life, sir. So Thank now you, sir. coming back to our discussions, what I am saying, our retail investor একজন সবে মার্কেটে এসছে, আপনি তাকে বলুন, যারা আজকে থেকে শুনছে আমাদেরকে, তারা কি কি জিনিস 1 থেকে 5 পর আগে করা উচিত মার্কেটে নামার আগে, এরকম একটা 5-7 আপনার যেটা পয়েন্টগুলো থাকে, যেটা আপনি বলেন, এরকম একটা চেকলিস্ট যদি আমাদেরকে বলে দেন, তাহলে আমাদের দর্শক বন্ধুরা সেটা লিখে নিতে পারে। ক্যান ইউ গিভ মি আ চেকলিস্ট লাইক দিস, দ্যাট দ্য পিপল what they should and what they should not do before investing into the market, not after? This sanity check is required, then only they can become a good investor, retail investor. एक्सपर्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन लॉस मिनिमम से मिनिमम हो सकता है, प्रॉफिट कुछ करेगा ही करेगा। तो ये थोड़ा कुछ आप मार्गदर्शन कीजिए। বলছি, তো যে বিষয়টা আপনি ছোট আমায় করলেন, সেটা হচ্ছে একজন নিউ কামার যে মার্কেটে আসতে চাইছে তার কি করা উচিত। আমি সেই বন্ধুকে, ভাইকে একটা কথা বলবো, সবার ফার্স্ট এডুকেট করুন নিজেকে, ফার্স্ট এডুকেশন ছাড়া এই মার্কেটে কেন কোনো জায়গায় আপনি কিছু করতে পারবেন, আমি যেটা প্রত্যেক প্রোগ্রামে বলে এসেছি। দ্বিতীয় ব্যাপার যেটা, সেটা হচ্ছে অ্যাকাউন্ট যে কোনো সেবি রেজিস্টার্ড ব্রোকারের কাছেই খুলবেন। কোনো মানুষের, আপনার কোনো বন্ধু বান্ধব বা কোনো রিলেটিভ, সে হয়তো স্টক মার্কেটে কাজ করে, কারুর অ্যাকাউন্টে নিজের পয়সা দিয়ে কাজ করবেন না। তার কারণ আপনার কাছে কোনো প্রুফ থাকবে না যে আপনার টাকা কি হলো কি না হলো। এই যে জিনিসগুলো, এই নিয়মাবলীগুলোকে মেনে চলুন। তারপর যে কোনো দিন, যে কোনো সময় আপনি ট্রেডিং করছেন, একটা স্টপ লস সবসময় নিজের সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে রেখেই ট্রেড করুন। যেমন আমি লাস্ট ফ্রাইডের একটা ঘটনা বলছি। আমারই একজন দাদা আছেন, খুবই কাছের দাদা, আমাকে ভীষণ শ্রদ্ধা করি, ওনাকে আমি একটা ট্রেড করিয়েছিলাম। ট্রেডটা কি, মন্দির একটা সদা ছিল, মানে ওনাকে আমি অপশন ট্রেড করিয়েছিলাম 228 টাকাতে। মে মাসে একটা পুট অপশন ধরানো হয়েছিল। কোথায় ধরানো হয়েছে? তো এক্স্যাক্টলি ওই ধরুন ফ্রাইডে যে আপনার থার্সডের যে হাইটা ছিল 414, তার থেকে ওই 10-12 পয়েন্ট আগেই হয়তো ধরিয়েছিলাম। আমার লেভেল ছিল 381, অ্যারাউন্ড ওই রকম লেভেলেই ধরানো হয়েছিল।
তারপর দিন মার্কেট ক্র্যাশ করে, মানে নিচে আসে, গ্যাপ ডাউন হয়। উনি ভালো একটা প্রফিট পেয়েছিলেন। উনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন যে ভাই আমি কি বিক্রি করে দেবো? তখন আমি বিক্রি করতে বারণ করি। তখন তার দাম 320 টাকা, সে অলরেডি অ্যাপ্রক্স 100 টাকার মতন পাচ্ছে। আমি বললাম না, এটাকে বিক্রি করার কোনো প্রয়োজন নেই, বরঞ্চ আপনি এক কাজ করুন, আপনি 314 যেটা আজকের হাই হয়েছে সেটাকে স্টপ লস দিয়ে হোল্ড করুন। তখন মোটামুটি ওই 2:30 নাগাদ ঘটনাটা ঘটে। তারপর থেকে মার্কেট নিচের দিকে গিয়ে 150-এর কাছাকাছি, 150-এর কাছাকাছি লোটা হিট করে। ইনফ্যাক্ট ওই পজিশন আজও হোল্ড আছে, এবং এটা হচ্ছে এপ্রিল সিরিজের, মে সিরিজের 26 মে 17,000 অ্যারাউন্ড একটা পুট অপশন নেওয়া। এবার এই ঘটনাটা কি হবে সোমবার, যেহেতু ডাউ জোন্স, ন্যাসড্যাক ম্যাসিভ ভাবে ফল করেছে, এর একটা ইম্প্যাক্ট আমরা মানডে আমাদের মার্কেটে দেখতে পারবো। যখন আমাদের মার্কেট ওপেন হবে, আশা করি একটা বাজে জায়গায় ওপেন হবে। এর ফায়দাটা কে পাবে? এর ফায়দাটা তারা পাবেন যারা আজকে পুট অপশন ক্যারি করছে। আমি একটা প্রোগ্রাম আলাদাভাবে করব, এর মধ্যেই ইচ্ছে আছে অপশন ট্রেডিংটা কি হয়, কখন অপশন কিনতে হয়, কখন অপশন সেল করতে হয়, কখন অপশনে কাজ করতে নেই, সমস্ত ব্যাপার আমি আমার দর্শক বন্ধুদেরকে জানাবো। ভেরি রিস্কি কাজ, কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং, এবং এখানে চটজলদি পয়সা পাওয়াও যায়। হ্যাঁ, আপনি বলুন। আপনার কথার সাথে এর মাঝখানে আমি একটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যোগ করতে চাই। সেটা হচ্ছে যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনি খুব একটা দামি কথা বলেছেন যে কারো নামে ট্রেড করবেন না, নিজের নামে ট্রেড করবেন। একদম। এই যে কথাটা, এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ এটার একটা উদাহরণ আপনাকে দিই। আমাদের ভারতীয় প্রেক্ষাপটে আমরা আশা করি আমার করোনা হলে সরকার এসে আমাকে ফ্রিতে টিকা দিয়ে যাবে, ঘরে ফ্রিতে চাল দিয়ে যাবে, ঘরে ফ্রিতে ইলেকট্রিসিটির বিল দিয়ে যাবে, এই সমস্ত কিছু ফ্রিতে দিয়ে যাবে। এবার ধরে নেওয়া যাক সেই সরকারটা আমি, আর আমার বাড়িটা হচ্ছে সেই দেশ, আমার ছেলে মেয়ে বউ বাচ্চা বাবা মা এরা হচ্ছে আমার সিটিজেন, আর আমি হচ্ছে সেই সরকারটা। সবাইকে ফ্রিতে আমি জোগাতে তখনই পারবো যদি আমার চাকরি থাকে বা ব্যবসা থাকে যেখান থেকে আমার রোজগারটা আসবে। তা সরকারের তো বিজনেস নয়, সরকারের ট্যাক্স থেকে রোজগার। আমাদের প্রথম একটা উদ্দেশ্য যেটা করে যারা এই ট্র্যাপে ফেলে, বিশেষ করে চিট ফান্ডের ট্র্যাপে বা ইত্যাদি ট্র্যাপে, তারা যেটা বোঝায় যে তোমার ট্যাক্স দেওয়ার কোনো দরকার নেই, ট্যাক্স সেভিংস। হ্যাঁ, ট্যাক্স সেভিংস। এই ট্যাক্স সেভিংসটা করার জন্য কি করতে হবে? তোমার নামে খোলারই দরকার নেই, তোমার তো টাকাটা পাওয়া নিয়ে কথা। আমি তোমাকে ক্যাশ এসে দিয়ে যাবো, তোমার তো মাথা पैचर की दरकार, बैंक अकाउंट किच्छु লাগবে না। आपको बैंक अकाउंट का क्या जरूरत है? हम खुद ही आएंगे, आपको कैश में पैसा दे जाएंगे। I'll come down and give you the cash. Why you need bank account? Now, point number 1. This is the trap number 1. What is getting traded? What is the value? What is the rate? Nobody knows. Correct? तो आपका शेयर 1000 में बिका, 1100 में बिका, 900 में बिका, आपको पता नहीं। वो आके जो पैकेट थमा रहा है वही आप थमा रहे हैं। बस वो आके बोल दिया लॉस हो गया साहब, आपने आके देखा लॉस हो गया। वो लॉस 10 रुपए का था या 200 रुपए का, पता नहीं। सो नेवर एवर ट्रेड इन अदर्स अकाउंट, डू इट ऑन योर अकाउंट। जो भी टैक्स बनेगा देश का भागीदार बनिए, टैक्स दीजिए और प्राउड रहिए, बेफिक्र रहिए, रात को निश्चिंत से सोइए। ना इनकम टैक्स आपको परेशान करेगा, ना ईडी करेगा, ना सीबीआई करेगा। उल्टा बोल सकते हैं आप लोगों का तनख्वाह साहब मेरा टैक्स से चलता है। ईमानदार नागरिक बनिए, बी ए ट्रू सिटीजन ऑफ इंडिया, contribute your part to the country's growth, and in return get it 100 folds. In that stage you can even question government. Sir, for development of my country I have given 2 lakhs of tax. What is the development has come up? हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं करते हैं, क्वेश्चन बहुत कर लेते हैं साहब। ये अपनी प्रॉब्लम। First thing is to become a contributing citizen of India. Share market is a good option.
जहां से आप प्रॉफिट कर सकते हैं, प्रॉफिट का एक स्मॉल पार्ट आप टैक्स में भी दे सकते हैं, और वहां से आपका देश बनेगा, पक्का सड़क बनेगा, बिजली बनेगा, और मजलूम का ट्रीटमेंट भी होगा। ये एक संदेश इसलिए है, हम लोग तो आजादी का अमृत पालन कर रहे हैं, 75 इयर्स पालन कर रहे हैं। नेताजी सुभाष जी अपने लीडर थे, वो वही देश का सपना देखे थे जहां पे हर नागरिक खुश रहेंगे। खून मांगे थे, आजादी मिला था। अब खून दे के वो आजादी का इज्जत रखना भी जरूरी है। जो अपना बॉयज बॉर्डर पे कर रहे हैं, सियाचिन में कर रहे हैं, लद्दाख में कर रहे हैं, सीना तान के खड़ा है दुश्मनों के गोली के आगे, कुछ तो इज्जत हमको भी करना चाहिए। ये टैक्स उन लोगों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट लाएगा, ये टैक्स उन लोगों के लिए वो -40 डिग्रीज में हॉट आपका हीटर लाएगा, वो हमारा ही घर का लड़का है। सो फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी, एंड फॉर दैट मैटर you, whenever global people are listening, feel proud of your own country's army, because they are fighting for you. Whoever it is, feel proud for your country, be patriot. तो विशाल जी, आपका सेकंड पॉइंट जो आपने बताया यहाँ पे, एक तो हो गया साहब दूसरे के अकाउंट में ट्रेडिंग नहीं करना, हैव योर ओन डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। नंबर 2, डू नॉट इन्वेस्ट by taking loan and other risky कभी नहीं ventures. करना चाहिए, कभी नहीं करना जो चाहिए। पैसा आप आपके जोड़ पास- के बनाइए, हाँ, उसका एक सेक्शन लीजिए जो आप झटका संभल सके, और पहले छोटा छोटा स्टेप से चलना चाहिए। एक बार में 1,00,000 2 लाख रुपया मत लगाइए, पहले मार्केट को समझिए, उसका चलने का ढंग, बोलने का ढंग समझिए, वो কেমন করে চলে, কি করে উপরে যায়, কি করে নিচে আসে, এই শিক্ষাটা লাভ করুন, এই জ্ঞানটা লাভ করুন, তারপরে আস্তে আস্তে আপনার রেঞ্জ বাড়ান। আপনি যদি 100 টাকার মধ্যে খেলতে অভ্যস্ত থাকেন এই সপ্তাহে, নেক্সট মান্থে চেষ্টা করবেন যাতে 500 টাকায় খেলতে পারেন, তারপরে 5,000 টাকায়, কিন্তু সেটা কতটা সেটা আপনার নিজের ক্যাপাসিটির উপর। না হলে আবার একবার আপনার সামনে দেখিয়ে দিচ্ছি, আপনারা দেখুন যে স্ক্রিনটা এখানে দেখা যাচ্ছে, আমরা এই স্ক্রিনের যেগুলোতে নিচের দিকে নেমে গেছে, তো উপর দিকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, কিন্তু যখন নিচের দিকে পড়ছে তখন কেউ না কেউ লস করছে। আর সেই ধাক্কাটা যাতে আপনাদের না লাগে, সেই জন্যই বারবার আপনাদেরকে আমরা সচেতন করছি, বিশালজি সচেতন করছেন প্রতিটা এপিসোডে। ট্রেনিং ট্রেনিং ট্রেনিং, এক্সপিরিয়েন্স এক্সপিরিয়েন্স এক্সপিরিয়েন্স, এই দুটোর কোনো বিকল্প নেই। এটা নিয়ে মাঠে নামুন। বিশালজিদের মতন আরো যারা আছেন, যাদের সাহায্য নিলে আপনারা উপকৃত হবেন, তাদের সাথে কনসাল্ট করুন। বিশালজি, আপনার পরবর্তী কি বলার আছে বলুন স্যার। না, আমার যেটা পরবর্তী যেটা বলার আছে সেটা হচ্ছে মার্কেটের যা সিচুয়েশন আমি দেখতে পাচ্ছি, সত্যি কথা বলতে গেলে আমি দীর্ঘ 7 মাস ধরে খুব একটা ভালো ঠেকছে না আমার এই বাজার। যখন 18,604, তখন আমি যদিও আপনাদের চ্যানেলের সাথে যুক্ত ছিলাম না, আমি মার্চ মাসের 24 তারিখ আপনাদের সাথে যুক্ত হয়েছি। তখন থেকেই আমার কেমন একটা ভালো ঠেকছিল না ব্যাপার। যাই হোক, যারা আমার সাথে তখন যুক্ত ছিলেন বা ইনফ্যাক্ট আজও আছেন, তাদেরকে আমি অ্যালার্ট করেছিলাম যে আপনারা মার্কেট থেকে এক্সিট হন, এবং তার মধ্যে আমার অনেক আত্মীয় আছেন, বন্ধু বান্ধবরা রয়েছে। যাই হোক, সোমবার দিন যেই ঘটনাটা ঘটবে সেটার ট্রেলার ইউএস মার্কেট অলরেডি দেখিয়ে দিয়েছে, এবং এই ঘটনাটা যে ঘটবে এটা আমি অনেক দিন ধরেই বলে আসছি আপনাদের। নট অনলি ইন্ডিয়া বাট অলসো থ্রুআউট দ্য ওয়ার্ল্ড এই ঘটনাগুলো ঘটছে। মাঝে মাঝে একখানা বাউন্স ব্যাক নেবে, একটা র্যালি নেবে মার্কেট, সেই বাউন্স ব্যাক গুলোকে জাস্ট আপনি এক্সিট হিসেবে ইউজ করুন। আমি আমার 3rd এপিসোডে একটা কথা বলেছিলাম আমার দর্শক বন্ধুদের জন্য, যে চার্টকে চার্টের মতন দেখুন, নিজের মনের মতন। আজকে আপনি লং পজিশনে আছেন, আপনি মনে করলেন লং এ আছি তাই একটু মার্কেটটা উপরের দিকেই উঠবে,
আমি চারিদিকে শুধু গ্রিন শুটস দেখবো, সেভাবে কিন্তু মার্কেট চলে না। একটা জিনিস লক্ষ্য করুন, আপনি আমাকে একটা প্রশ্ন করেছিলেন যে ডাউন ট্রেন্ড কাকে বলে আর আপ ট্রেন্ড কাকে বলে। তখন আমি আপনাকে একটা জিনিসের উত্তরে উত্তরে বলেছিলাম যে যখন মার্কেট লোয়ার হাই লোয়ার লো বানানো শুরু করে সেটাকে ডাউন ট্রেন্ড বলা হয়। চার্টে একবার লক্ষ্য করে দেখবেন দর্শক বন্ধুদের বলছি, প্রথম টপ আমাদের লাইফ টাইম হাই, অল টাইম হাই যেটাকে বলা হয়, সেটা হয়েছিল 18,604। 18,604 ঘটনাটা ঘটে 19/10/2021, which was also a pressure date, major pressure date from আমরা a একবার major সেটা দেখে top। নিই। দেখে নিন, এটা আপনি 9 মাসের চার্টে চলুন, 9 মাসের চার্টে আসুন, 6-এর জায়গায় ওটাকে 9 করে দিন, তাহলেই চলে আসবে। দেখতে পাচ্ছেন আশা করি, একদম টপ, অক্টোবর মাসের 19 তারিখ। ইয়েস, ওটাই এক্স্যাক্টলি তাই। ওখান থেকে মার্কেট স্ট্রেট ফল করে, সেই এইখানে ফলটা চলে এসে এসেছি। এক্স্যাক্টলি 20/12/2021, 20/12/2021 একটা বাউন্স নেয়। বাউন্সটা নেওয়াই মানে একদম ওটা উচিত ছিল, ওখান থেকেই বাউন্স নেওয়ার কথাও ছিল। তখন লোটা কি হয় 16,410, ওখান থেকে আরেকটা টপ আউট হয় মোস্ট প্রবাবলি 18 জানুয়ারি 2022। হ্যাঁ, 18 জানুয়ারি correct, 2022। correct। তারপর থেকে আরেকটা লো হিট হয়, সেটা হচ্ছে 15,671। আমার লেভেল ছিল 15,664। এক্স্যাক্ট 7 পয়েন্ট আগে থেকে নিবে মার্কেটটা ঘোরে, তারপরে আবার একটা র্যালি স্টার্ট, এবং সেই র্যালিটা গিয়ে আমারই একটা বলা লেভেল ছিল 18,114, সেখানে গিয়ে ঠেকে, দেখে নিন। এবং সেই লেভেলটা, সেই তারিখটা ছিল 4th এপ্রিল, যেটা আমি 3rd এপ্রিল বলে গেছিলাম যে 4 থেকে 6-এর মধ্যে একটা টপ আউট হবে, মোস্ট প্রবাবলি 4 তারিখেই হয়ে যাবার কথা, এবং 6 তারিখে দেখুন গ্যাপ ডাউন মার্কেট হয়ে গেছে যা হবার। তো কি হলো, মার্কেট হাই তো প্রিভিয়াস ভাঙতে পারছে না। প্রথম হাইটা হয় 18,604, তারপরের হাইটা হয় 18,350, তারপরের হাইটা হয় 18,114। দেখুন, একবারও কিন্তু হাই ব্রেক হয়নি, whereas দুবার কিন্তু লো ব্রেক হয়ে গেছে। প্রথম লো 16,410, দ্বিতীয় লো 15,671, আর এবারের লো এরও নিচে যাবে। যতটুকু আমি বুঝতে পারছি, আমার ক্যালকুলেশন যেটা বলতে চাইছে 14,980, অ্যারাউন্ড দেখা যাক। June 21st। Another question has come up। विशाल जी, आप ये मैथमेटिक्स से कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स से कर रहे हैं, या आप किसी मंथन में बैठ के, चिंतन में बैठ के आपको भगवान का देववाणी सुनाई दे रहा है? मतलब एक दर्शक मजे से पूछा है कि ये मतलब अगले दिन से हम क्या इसको विशाल बाबा का चमत्कार बताएंगे? नहीं, वैसा कोई चमत्कार नहीं है। ये जो भी चमत्कार है, मंथन का काम का नाम लिया ना आपने, एग्जैक्टली मंथन है। 14 साल का मंथन है, 14 सालों का मंथन है। ग्रेजुएशन के बाद से कोई काम नहीं मिला, बस भैया लगे जाओ अपने खानदानी व्यापार में, और कुछ आता नहीं है। शेयर बाजार आता है, ये खून में है, तो इसको लेकर के ही अगर कुछ कर सकते हो तो कर लो, नौकरी तो मिलने से रहे। एनीवे, मैं बहुत खुश हूं कि मैंने आज तक नौकरी नहीं की, और मैं आज इसमें हूं, ये मुझे नौकरी से ज्यादा देखे जाता है। तो मंथन करना बहुत अच्छा। अब ये और एक प्रश्न आया है अपने दर्शक से। ये बोल रहे साहब, मैं पिछले 5 साल से ग्रेजुएशन के बाद खाली बैठा हूँ, सरकारी नौकरी का कोशिश में ट्राई कर रहा हूँ साहब, लेकिन कुछ कमाई नहीं करेंगे तो अपने आप में थोड़ा मतलब लो फील करता हूँ।
he has said very plaintively. I don't want to say that thing. तो आपका ये एपिसोड पढ़ते हुए देखते हुए दिल में फिर से उम्मीद जगा है। मैं नाउम्मीद हो चुका था सर, 3 बार लोअर डिवीजन क्लर्क एसएससी में सिलेक्ट होके भी काम नहीं हुआ। तो हम शेयर मार्केट में कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे जैसे आदमियों के लिए क्या हम लोग 10 या 20 हजार के पूंजी से स्टार्ट कर सकते हैं? अगर पढ़ाई कर लिए तो आप जैसे बता रहे हैं, तो इतने पूंजी से हम लोग आगे जा सकते हैं क्या? हमको एक दिन में राजा नहीं बनना है, ये भी लिखा है। ये बहुत बड़ी बात है, एक दिन में राजा नहीं बनना है इनको। तो भाई साहब को जवाब क्या हिंदी में दूं, बांग्ला में दूं, किस भाषा में दूं? आप आराम से, वो तो क्वेश्चन हिंदी में किया है। अच्छा, तो मैं हिंदी में ही जवाब देता हूँ। तो मेरा जवाब ये है कि भाई मेरे, यहाँ पे 5,000, 10,000, 20,000 मैटर नहीं करता है। यहाँ पे मैटर करता है कि आप कितने डिसिप्लिन में हैं। आपके पास में मान लिया जाए कि 20,000 की पूंजी है, बहुत बड़ी पूंजी है, मोर देन सफिशिएंट। मैं कहता हूं मोर देन सफिशिएंट। अगर आप प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में काम करते हैं, मेरा जो बताया हुआ नॉलेज, डिसिप्लिन और कैपिटल मैनेजमेंट, इन तीनों को अगर पंच करके प्रॉपर वे में काम करते हैं, तो मैं इतना बोल सकता हूँ, लखपति करोड़पति नहीं बनोगे, कम से कम रोडपति बनने से बच जाओगे मेरे भाई। तो अपने ऊपर विश्वास रखो, होगा, जरूर होगा। और कुछ ही दिनों में हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी लॉन्च करेंगे, जैसा कि सुमन बाबू ने बताया है। वो सॉफ्टवेयर अगर आप लोगों के हाथ में आ गया, तो आप लोगों के लिए वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप बोलोगे, मार्केट आपके कहने पे उठक बैठक करेगा। जैसे सुमन बाबू ने एक बार कहा था कि विशाल जी आपने कमाल कर दिया, मार्केट तो आपके कहने पे उठक बैठक करा। मैं कोई नहीं हूँ, जो भी है वो सारी चीज मैथमेटिक्स है, सारी चीज स्टैटिस्टिक है, मेरा मंथन है थोड़ा बहुत। मैं तो अपने आप को कुछ ज़्यादा समझता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को एक ही बात कहूँगा, खुद पर भरोसा रखना, कभी भी उदास मत होना, गिव अप मत करना। एक बार अगर गिव अप कर दिया ना, तो मैं तो क्या, अलादीन का चिराग भी आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पाएगा जो आप में ऑलरेडी है। डरो मत, आगे बढ़ो, डिसिप्लिन के साथ में आगे बढ़ो। सौदा लेकर के जाना है तो लॉजिक क्या है, लॉजिकली सौदे को कैरी करो। अगर काट के जाना है तो उसके पीछे में क्या लॉजिक है, उसको कैरी करो। लॉजिक को बताओ। मेरा मन चाहा, मैंने सौदा कर लिया। ऐसे शेयर बाजार नहीं होता है। मन के या गट फीलिंग से शेयर मार्केट नहीं चलता है। ये और ये, इस दोनों में 1 फुट का फासला है। लेकिन काम शेयर मार्केट में यहाँ से करो। इसको ठंडा रखो, इसमें आग रखो कि मेरे को कुछ करना है। दिल में आग, दिमाग में ठंडक, तभी आप काम कर सकते हो, अदरवाइज काम नहीं कर सकते। और सबसे पहली बात कहूँगा, आप लोग विशाल जी ने जो बात बताए, वही बात हम लोग 2 मिनट के लिए आपके सामने एक वीडियो रन करना चाहते हैं। जो पहली एपिसोड से विशाल जी बता रहे हैं, उसी का निचोड़ है। देख लीजिए एक बार। IBG News Market Dost series with analyst Vishal Sharma. Know your stock market and take informed decisions. No risk, no gain. Without knowledge, everything is pain. Trade responsibly. Make your safest bet to reduce loss. हम लोग फिर से वापस आए तो वो छोटा सा वीडियो में विशाल जी पहले ही दिन क्या बताए थे, नो रिस्क नो गेन बट विदाउट नॉलेज एवरीथिंग इज पेन। तो जो भी डिसीजन लीजिए समझ के लीजिए, होशियारी से लीजिए और पूरे होशो हवास में लीजिए। कोई भी इमोशनल डिसीजन नहीं। जो भी लेना है प्रैक्टिकल, मैथमेटिक्स और मार्केट डायनामिक्स के ऊपर बैठ के करना है। यही मार्केट है शेर का सवारी करने जैसा। जो चढ़ गया तो राजा,
और जो चढ़ नहीं पाया शेयर उसको खा जाएगा। तो उस हिसाब से मेरा दोस्त नारायण जिसका नाम है, तो नारायण जी आपको मैं यही बताऊंगा, नाउम्मीद मत होइए। विशाल जी जो बने हैं उसको ध्यान दीजिए, किसी अच्छे गुरु के संगत में, टीचर के संगत में इसको सीखिए, जानिए, जान के छोटे से आपको 20,000 का पूंजी है तो हम मेरे ख्याल से आप 1,000 से 5,000 से स्टार्ट कीजिए, बाकी 15,000 आपके पास रखिए। पहले इक्का दुक्का आपको धक्का भी लग सकता है, लेकिन जब संभाल के सीख जाएंगे तो यही 20,000 आपके आगे ले जाएगा। पूरा पूंजी एक बार में किसी में मत लगाइए, किसी के बात के ऊपर, वो रिस्क हो जाता है सब। और इस मार्केट में किसी से ओपिनियन मत लेने जाइएगा, अपना ओपिनियन खुद सेट करिए। आप अपना खुद का मास्टर बनिए, आपको किसी और को अपना मास्टर बनने देने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूँ एजुकेशन फर्स्ट। आप अपने आप को एजुकेट कीजिए। যতক্ষণ আপনারা নিজেরা নিজেকে শিক্ষিত করবেন না ততক্ষণ এই মার্কেট কেন কোনো মার্কেট আপনাকে কোনো কিছু করতে পারবে না আপনার জন্য। তাই যদি নিজেকে और एक क्वेश्चन आया है, जाते जाते एक क्वेश्चन का जवाब चाहिए। बोलिए सर, एक प्यारा सा दोस्त लिखा है, विशाल जी हम आपसे सीखना चाहते हैं सर। अच्छा, हमको क्या करना है, फीस कहाँ होगा, कौन सा स्कूल क्या जाना है, थोड़ा हम लोगों को एक बार बता दीजिए, नाटशेल में कैसे कर सकते हैं। ये आप ऑनलाइन कराते हैं या साथ में नहीं, मेरे पास में आना पड़ेगा, मेरे पास आना पड़ेगा, मेरे पास में आना पड़ेगा आपको। मैं एकदम सामने बैठा करके आप लोगों को सामने बैठा करके ये कोर्स कराऊंगा। और मेरा वैसे कोई क्राइटेरिया नहीं है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा भी मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ 10th पास चाहिए। अगर आपके पास में 10th पास की क्वालिफिकेशन है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, आप लोग आइए, सीखिए। मैं आपको सही है, मैट्रिक पास होने से ही चलेगा साहब, मैट्रिक पास बस मेरे को MBBS नहीं चाहिए, वो मेरे को चाहिए पूरा नहीं चाहिए ऊपर में कितना भी क्वालिफिकेशन हो, मिनिमम इज मैट्रिक। अच्छा, क्योंकि मेरे को चाहिए पूरा। एक और क्वेश्चन आ गया, और एक क्वेश्चन आ गया सर, आपके पास जाने के लिए तो कलकत्ता पहुंचना पड़ेगा। और हम लोग जो बाहर वाले हैं, हम लोग के लिए क्या है सर, हम दिल्ली से हैं, हम मुंबई से हैं, हम चेन्नई से हैं। तो ये जवाब हम देते हैं विशाल जी के बदले में। आप लोग एक साथ 10-20 दोस्त इकट्ठा कीजिए कि यहाँ से उधर जाके क्लास लेके 1 हफ्ता 2 हफ्ता रह के आपको पूरा ट्रेनिंग देके विशाल जी को आने का कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो जाए, रहने का सारे चीजें निकाल आए, तो शायद वो कोशिश भी करेंगे। हम अपने सारे भारत अपना है, तो हर एक स्टेट का सिटीजन की तरफ से आपके ऊपर ये रिक्वेस्ट रखते हैं साहब कि इफ ए गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर सिटी और प्लेस इज कमिंग अप, प्लीज ट्राई टू एकोमोडेट योरसेल्फ, योर ट्रेनिंग विद देम। बिल्कुल जी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खुद चाहता हूं कि मेरा व्हाट्सएप नंबर आगे बढ़े। विशाल जी का व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी नीचे चल रहा है। आप लोग ये वीडियो बाद में यूट्यूब में भी अवेलेबल होता है, अपना IBG न्यूज बोल के जो यूट्यूब चैनल है। हम कभी भी नहीं बोलते हैं आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। अगर आपको लगता है हम लोग जेन्युइन में आपको कुछ अच्छा चीज दे रहे हैं, तो तब आके का कोई इच्छा नहीं है। Those who really feels that you are getting benefited out of these programs, please subscribe so that future editions you are also getting. तो विशाल जी को आज हम लोग यहीं पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग विदाई ले रहे हैं सर। आपका ऑलरेडी हम लोग 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले चुके हैं, 50 मिनट का रहता है, लेकिन आज हम लोग का 1 घंटे का हो चुका है एपिसोड। तो नमस्ते दर्शकों की तरफ से, फिर बहुत जल्द मिलेंगे विशाल जी और गुफ्तगू में नेक्स्ट News Market Dost series with analyst Vishal Sharma. Know your stock market and take informed decisions. No risk, no gain. Without knowledge, everything is pain. Trade responsibly. Make your safest bet to reduce loss. विशाल जी আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, শুভরাত্রি। লাস্টে কথাটা খেয়াল রাখবেন, ট্রেড রেসপন্সিবলি, উইদাউট নলেজ এভরিথিং ইজ পেইন। থ্যাংক ইউ, গুড নাইট, শপা খের। গুড নাইট, নমস্কার।